So this is your next video on phylum Annelida. No, not next video. This is the new video of phylum Annelida. Next video in terms of animal kingdom. So in phylum Annelida, first we will talk about some general characteristics. 9,000 species have been discovered till date. Okay, they are also called as segmental worms. This is their another name. Annelids can also be called as segmental worms because they show true segmentation. Now what is true segmentation? I have already explained in the basis of classification. If you ask me in terms of segments कि कौन से animal में कितना segment है, तो जो leech है, leech has 33 segments in its body. And if you ask me, like for example earthworm, these are the two animals which we come across very often and all, is not it? Leech, we see leech, है ना? Earthworm, we see earthworm around us. So earthworm में there are 120 segments present. So these animals have some segments in their body. And what type of segmentation? True segmentation. Habitat and habit, okay? Where they live, how they live. So terrestrial, there are many species of Annelida, those who live in terrestrial condition. Example, earthworm. And habit of this particular animal is what? Free living. It manages its food on its own. Aquatic, those who live in water. Marine water, Nereis. This is also free living. Nereis is also free living. It manages its food on its own. Fresh water में रहता है कौन? Leech. Leech is also called as what? Hirudinaria. And leech is what? Ectoparasite. Body के बाहर से parasitism करता है. अपने आप को body के बाहर attach करता है, and then with the help of its powerful suckers, it starts sucking our blood and it feeds on our blood. Okay. So you can also write an additional point over here कि animal those who feed on blood, they are called as what? They are called as sanguivorous. Okay, so sanguivorous are the animals which feed on blood. Now mosquito will not be sanguivorous, is not it? Because mosquito sucks our blood in order to incubate their eggs, in order to hatch their eggs. Our blood is not a meal of mosquito. Those organisms who ingest blood in the form of meal, those animals can be called as what? Sanguivorous. Yes, sanguivore. Okay. Triploblastic. So Annelida, they are triploblastic. 3 germinal layers. Bilateral symmetry. One plane can cut the body into 2 equal and identical halves. Extracellular digestion. Alimentary canal is there, so entire digestion will be occurring inside the alimentary canal. Complete digestive system. Organ system. Level of organization. Okay, so these are the things we have already discussed in the basis of classification. So moving on to the next points of classification. Okay, make proper notes out of this. So this is your next part. ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जो डिफरेंट एनालिड्स है उनका लोकोमोशन कैसे होता है, या क्या स्ट्रक्चर्स है जो उनको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है. इज नॉट इट. लोकोमोशन माने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हियर we have taken in consideration the 3 most popular annelids. The first one is leech, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था. तो leech का या फिर इन सब का, ये जो तीनों मैंने लिखा है, इन तीनों का एक बेसिक स्ट्रक्चर बॉडी में प्रेजेंट होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर इन लोगों को मूवमेंट करने में मदद करेगा. एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना. और उस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ फिर साथ में रहेगा क्या? कुछ एक्सेसरी अपेंडेज. ठीक है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के साथ और भी कुछ स्ट्रक्चर जो मदद करेगा इन टर्म्स ऑफ डूइंग व्हाट? ऑफ डूइंग लोकोमोशन. ठीक है ना. तो लीच जो है, लीच में जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो होगा सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल. एंड इन द लास्ट video I have discussed about how circular muscle and how longitudinal muscle helps in moving. Longitudinal muscle सीधा सीधी कंट्रैक्ट करके सीधा वाला मूवमेंट देगा. सर्कुलर मसल बॉडी को बेंड वगैरह करने में हेल्प करेगा. ठीक है. एक्सेसरी अपेंडेज लीच में एब्सेंट है, तो लीच का जो मूवमेंट है वो कैसा होगा? लीच कैसे मूव करता है? ऐसे मूव करता है कि नहीं? ऐसे ऐसे सीधा हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे. इसको क्या बोलते हैं? एक लूप. ये जो फॉर्म करता है अपने बॉडी में, ये क्या है? ये एक लूप है. तो इस तरीके का मोड ऑफ लोकोमोशन को हम लोग क्या बुलाएंगे? लूपिंग. ठीक है ना. तो दिस इज द मोड ऑफ लोकोमोशन फॉर हुम? दिस इज द मोड ऑफ लोकोमोशन फॉर लीच. तो लीच इस तरीके से मूव करता है ऐसे. दिस इज कॉल्ड लूपिंग. सीधा हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर सीधा हो जाएगा. दिस इज लूपिंग. ओके, जो मैंने अभी बना के दिया.
आर्थ्रोम। आर्थ्रोम में बेसिक स्ट्रक्चर वही सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक एक्सेसरी अपेंडेज भी है। बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी है जो लोकोमोशन करने में मदद करेगा। क्या नाम है? काइटिनस सेटी। एंड व्हाट इज काइटिनस सेटी? There are some numerous bristles that comes out from the ventral region of the body, जो बॉडी का वेंट्रल साइड है वहां से निकल के आता है। एंड उस वेंट्रल साइड में एक सैक होता है जिस सैक का नाम है सेटिगेरस सैक। उस सेटिगेरस सैक से निकलता है क्या? काइटिनस सेटी। एंड ये काइटिनस सेटी इस ऑर्गेनिज्म को क्या करने में मदद करता है? क्रॉलिंग। इस ऑर्गेनिज्म को लूपिंग करने का जरूरत नहीं है, ये क्रॉल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास बेसिक स्ट्रक्चर के साथ एक और स्ट्रक्चर है जो इसके लोकोमोशन में एक नया टाइप ऑफ लोकोमोशन लाता है, दैट इज क्रॉलिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन। अगर आज आर्थ्रोम के बॉडी में ये काइटिनस सेटी नहीं रहता तो आर्थ्रोम भी क्या करता है? लूपिंग करता है। बिकॉज काइटिनस सेटी है इसलिए आर्थ्रोम क्रॉल कर सकता है। आर्थ्रोम को देखा होगा, आर्थ्रोम लूप नहीं बनाता है, बॉडी को खींचता है, लंबा करता है, खींचता है, लंबा करता है, ऐसे करके आर्थ्रोम मूव करता है। तो उस मूवमेंट में वो लूपिंग नहीं करता है, लेकिन कोई पार्ट ऐसे करके उठ नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन बॉडी को कंप्रेस एक्सपांड, कंप्रेस एक्सपांड, उसको क्रॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं मान लो ये एक आर्थ्रोम है, मान लो ये एक आर्थ्रोम है और ये जमीन है, ये जमीन का रीजन है, तो ये वाला हिस्सा जमीन से लगा हुआ है और ये वाला हिस्सा एटमॉस्फेयर की तरफ प्रोजेक्टेड है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन उसका पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अपर एटमॉस्फेयर, एंड ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन ऐसे लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो पोर्शन लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, ये अगर ब्लैक वाला लैंड हुआ तो या ये साइड क्या होगा? ये जो नीचे वाला साइड है, लैंड के तरफ का साइड है, वो होगा वेंट्रल, और ऊपर का होगा क्या? ऊपर का होगा डोर्सल, है ना। आज अगर मैं ये जो वेंट्रल रीजन है, लैंड के तरफ जो रीजन है, उस रीजन में अगर मैं थोड़ा सा जूम करके देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? यहाँ पे मुझे दिखाई देगा इस तरीके का, एक तो इसका बॉडी सेगमेंटेड है, इस तरीके का सेगमेंट्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। बहुत सारा सेगमेंट होगा, इतना सारा ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, 120 सेगमेंट। लेकिन अगर मैं वेंट्रल साइड में देखूं तो हर एक सेगमेंट में मुझे क्या होगा? इस तरीके का, हर एक सेगमेंट में मुझे इस तरीके का डिप्रेशन 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 ऐसा दिखाई देगा। ये जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, यही डिप्रेशन है क्या? सेटिगेरस से। और इन डिप्रेशन से निकल के आता है क्या? सम ब्रिस्टल्स, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने वेंट्रली लिखना मैं भूल गया, तुम लोग जब नोट बनाओगे तो लिख सकते हो, दैट कम्स आउट फ्रॉम द वेंट्रल रीजन, ठीक है, या दैट कम्स आउट फ्रॉम द वेंट्रली लोकेटेड, ये लिखना, दैट कम्स आउट फ्रॉम दी के बाद यहाँ पे लिखना वेंट्रली लोकेटेड सेटिगेरस सेक, वेंट्रली लोकेटेड यहाँ बीच में लगाना, ठीक है। तो ये है, देखो वेंट्रल साइड, ये ऊपर वाला डोर्सल साइड जो तो लैंड के तरफ है वेंट्रल साइड, और वेंट्रल साइड में ऐसे ऐसे डिप्रेशन हर एक सेगमेंट में हम लोग को मिलेगा। ये डिप्रेशन है सेटिगेरस सेक, और इन सेटिगेरस सेक से निकल के आता है क्या? काइटिनस सेटी, जो इसको क्रॉल करने में मदद करता है। नंबर 3, नेरिस। सेम बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन एक एक्सेसरी स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्या? पैरापोडिया। ये पैरापोडिया कहाँ सिचुएटेड है? लेटरल साइड में। देखो ये वेंट्रली सिचुएटेड है, ये लेटरल साइड में सिचुएटेड है ऑफ द बॉडी, और क्या करने में मदद करता है? स्विमिंग एज वेल एज रेस्पिरेशन करने में मदद करता है। आज अगर हम लोग एक नेरिस को ड्रॉ करेंगे, एक नेरिस देखने में कुछ ऐसा टाइप का होगा, कुछ ऐसा टाइप का होगा एक नेरिस देखने में, ठीक है ना। तो ये नेरिस को हम लोग डोर्सली देख रहे हैं, ऊपर से डोर्सली, ठीक है ना। तो देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखाई देगा? इस तरीके से साइड में ऐसा, ये देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को साइड से निकला हुआ हम लोग को दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है। तो ये जो है, ये है फ्लैशी लोकोमोटरी अपेंडेज, और ये जो फ्लैशी लोकोमोटरी अपेंडेज है इसका नाम है क्या? इसका नाम है पैरापोडिया। और ये पैरापोडिया देखो बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट है, दोनों लेटरल साइड हम लोग डोर्सल व्यू में देख रहे हैं। ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने डोर्सल व्यू में बनाया है, ठीक है। और ये जो व्यू है, ये व्यू को हम लोग क्या बुलाएंगे? ये व्यू को हम लोग बुलाएंगे लेटरल व्यू। साइड से देख रहे हैं तो हम लोग को ऊपर वाला डोर्सल लैंड के तरफ वाला वेंट्रल पता चल रहा है, यहाँ पे ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, डोर्सल देख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को लेटरल साइड में क्या क्या है ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डोर्सल व्यू है, ठीक है। तो पैरापोडिया स्विमिंग में भी मदद करेगा एंड थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन करने में भी मदद करेगा, ठीक है। सो दिस इज योर लोकोमोशन रिलेटेड जो भी बोलना था, यहाँ पे आई गेव यू दैट, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं।
सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, देन हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू कनेक्ट बोथ दिस टॉपिक सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम विद अ डायग्राम, एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म कि कैसे इनका सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एक दूसरे के सपोर्ट में काम करता है, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन इन लीच, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन इन आर्थ्रोम एंड नेरिस। ठीक है, तो क्लोज ओपन ये सब के बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है डाउट में भी। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया है ओपन क्या है, क्लोज क्या है। अच्छा, बॉडी में अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो हार्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो ब्लड को मूव कराया जाएगा पूरे बॉडी में। ठीक है, हार्ट इज कॉल्ड टू बी द पंपिंग स्टेशन ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी, है ना। तो इन लोगों में 4 पेयर्स ऑफ ट्यूबुलर हार्ट्स है। ठीक है, अभी मैं इसके बाद डायग्राम बनाऊंगा, उसमें क्लियर होगा कि ट्यूबुलर हार्ट देखने में कैसा होता है। तो 4 पेयर्स ऑफ ट्यूबुलर हार्ट माने टोटल 8 हार्ट है जो पल्सेशन करता है, ब्लड को पंप करके बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, अच्छा, ब्लड, इनका बॉडी में ब्लड होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हैज टू बी देयर। तो ब्लड जो है ये ब्लड 2 चीजों से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग। एक, ब्लड में होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा माने ब्लड में होता है वाटर, वाटर में होता है कुछ प्रोटीन्स, है ना, कुछ मिनरल, सॉल्ट्स, विटामिन्स। ठीक है, ये जो होता है वाटर एंड वाटर में जो ये सब चीज होता है, विटामिन, सॉल्ट्स, है ना, प्रोटीन्स, अदर फूड सब्सटेंसेस, एक्सक्रीटरी, ये सब जो होता है पानी में, उस पानी को, ब्लड का उस पानी को हम लोग क्या बुलाते हैं, प्लाज्मा। एंड देन ब्लड में प्रेजेंट रहता है कुछ सेल जो तुम लोगों ने पढ़ा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो इस ऑर्गेनिज्म का ब्लड में आरबीसी एंड प्लेटलेट क्या है, एब्सेंट है ही नहीं, आरबीसी प्लेटलेट नहीं है, लेकिन एमीबॉइड कॉर्पस्कल और डब्ल्यूबीसी इज प्रेजेंट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो वर्ड है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये डब्ल्यूबीसी वर्ड हम लोग हायर एनिमल्स में यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आस, हमारे बॉडी में हम लोग डब्ल्यूबीसी को डब्ल्यूबीसी बुलाएंगे, लेकिन जो लोअर एनिमल्स है उनमें हम लोग डब्ल्यूबीसी को डब्ल्यूबीसी नहीं बुलाते हैं, उनमें हम लोग डब्ल्यूबीसी को एमीबॉइड कॉर्पस्कल्स बुलाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। प्लाज्मा जो है, अब ये क्वेश्चन मतलब एज ए डाउट आना चाहिए, लेकिन अभी आएगा नहीं क्योंकि यहीं पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एक हम लोग को पता है कि इनका बॉडी में सर्कुलेशन होता है और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन, CO2 ये सब का कैरिंग करता है ना, द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, द ब्लड ट्रांसपोर्ट CO2। जनरली इन आवर ब्लड, हमारे बॉडी में अगर हम लोग बात करें तो हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसमें ये काम कौन करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, ये काम करता है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन काम करता है ये, और आरबीसी जनरली काम करता है बिकॉज आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है ना। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें तो लोचा है, क्योंकि इसमें आरबीसी जो है वो है एब्सेंट, तो इनके बॉडी में जो गैसेस का एक्सचेंज होगा, जो गैसेस का कैरिंग होगा, वो तो ब्लड ही कर रहा है, लेकिन ब्लड में जो सेल ये काम करता है दैट इज आरबीसी, वो है ही नहीं। तो इस काम का भार, इस काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को लेना पड़ेगा। किसने लिया है, हेमोग्लोबिन ने लिया है, लेकिन हेमोग्लोबिन प्लाज्मा में प्रेजेंट है डिसॉल्व फॉर्म में, है ना। हेमोग्लोबिन जनरली आरबीसी के अंदर होता है, हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है, आरबीसी गैस का ट्रांसपोर्ट करता है। इन लोगों में आरबीसी एब्सेंट है, लेकिन फिर भी गैस का ट्रांसपोर्ट करना है तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या जुगाड़ लगाया है, प्लाज्मा में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है इन डिसॉल्व स्टेट। एंड क्या क्या है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एक है हेमोग्लोबिन, दूसरा है इरिथ्रोक्लोरिन। हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, हेम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन है प्रोटीन, हिम है एक मेटल। It is made up of 4 polypeptide chain, माने प्रोटीन, polypeptide chain प्रोटीन, each chain has 1 iron atom। जो देखो मेटालोप्रोटीन हुआ कि नहीं, मेटल आयरन मेटल, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन, तो मेटल और प्रोटीन का संगम हुआ है, उससे फॉर्म हुआ है क्या, हेमोग्लोबिन। मॉलिक्यूलर वेट हेमोग्लोबिन का कितना है, 64,000 डेल्टा। इरिथ्रोक्लोरिन, इट इज अ लार्ज ऑक्सीजन कैरिंग मेटालोप्रोटीन मेड अप ऑफ 144 पॉलीपेप्टाइड चेन। डिफरेंस देखो, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, ये 144। Each chain has 1 iron atom, ये ठीक है, इसका भी each chain has 1 iron atom, इसका भी each chain has 1 iron atom। Molecular weight is 3.5 million delta। So this is the difference between the two respiratory pigment जो इस organism के blood के प्लाज्मा में पाया जाता है,
रादर देन आरबीसी, क्योंकि आरबीसी इसमें एब्सेंट है। हमारे बॉडी में इरिथ्रोक्लोरिन नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के ब्लड में हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया है। अभी मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को जोड़ दूंगा और उसमें ट्यूबुलर हार्ट कैसे काम करता है वो समझाऊंगा। ठीक है, इसका अच्छे से नोट बना। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट डायग्राम, और इस डायग्राम को तुम लोग को अच्छे से समझना भी है और ड्रॉ भी करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन है क्या, वो है क्यूटेनियस। दैट मीन्स ये ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है वाया स्किन। ठीक है, ये मान लो एक ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने ड्रॉ किया, मान लो एक आर्थोम है, जिस आर्थोम का यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके बनाऊं तो ये हो जाएगा माउथ। ये माउथ है और ये माउथ का अंदर का पार्ट है। ठीक है, हमको पता है आर्थोम में 133 सेगमेंट्स है। सो दीज आर दी सेगमेंट्स ऑफ आर्थोम, जिनमें से ये सेगमेंट नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक ही मैंने दिया है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हमारा काम है। इसके बियॉन्ड का या इसके आगे का हमारा काम नहीं है। तो जो जो सेगमेंट्स में हमारा काम है, मैंने सिर्फ उन्हीं सेगमेंट्स के बारे में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये मान लो आर्थोम का माउथ और बॉडी का ऐसे जा रहा है, तो ये सेगमेंट 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जा रहा है, ऐसे जाते रहेगा टिल 120 सेगमेंट्स है, तो 120 सेगमेंट्स तक जाते रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बॉडी के अंदर अगर हम लोग प्रॉपर्ली देखें तो ये है इसका डोर्सल साइड, ये है वेंट्रल साइड, है ना। तो ये यहाँ पे जो ये ब्लैक का जो स्किन, वो मैंने क्या लिखा है, डोर्सल स्किन विथ फ्लूइड लेडन ओवर इट। तो डोर्सल साइड में आर्थोम का कंटिन्यूअसली एक फ्लूइड का प्रेजेंस रहता है, जो डोर्सल पार्ट ऑफ द स्किन को मॉइस्ट रखता है। ठीक है, तो ये ऊपर का जो स्किन है वो है मॉइस्ट, क्योंकि उसमें एक फ्लूइड है। नीचे का जो स्किन है वो वेंट्रल साइड का स्किन है, उसमें कोई फ्लूइड नहीं होता है। और वेंट्रल साइड तो क्या प्रेजेंट रहता है, सेटिगेरस जहां से निकलता है काइटिनस सेटी। तो वेंट्रल साइड इज बिजी इन गिविंग एकोमोडेशन टू काइटिनस सेटी, जबकि डोर्सल साइड जो है उसके ऊपर एक फ्लूइड है और वो फ्लूइड फैसिलिटेट करेगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को। कैसे करेगा वो भी हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग इस स्किन के अंदर झांके तो हम लोग को क्या दिखाई देगा, एक ऊपर से जाता हुआ ब्लड वेसल, जिसको हम लोगों ने क्या बुलाया, डोर्सल ब्लड वेसल। एक नीचे से जाता हुआ ब्लड वेसल, जिसको क्या बुलाया, वेंट्रल ब्लड वेसल। एंड ये दोनों ब्लड वेसल इस ऑर्गेनिज्म का मेजर ब्लड वेसल है, मतलब सबसे ज्यादा काम करने वाला ब्लड वेसल अगर इसके बॉडी का कोई है वो है वेंट्रल एंड डोर्सल। ठीक है, काम ये लोग क्या करता है बाद में समझा रहा हूँ। डोर्सल टू वेंट्रल एक स्ट्रक्चर है जो डोर्सल को वेंट्रल के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है हार्ट, ट्यूबुलर हार्ट जो हम लोगों ने बोला था। देखो ट्यूब जैसा है ट्यूबुलर हार्ट, तो ये है वो ट्यूबुलर हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दो दिखाई दे रहा है, इस तरफ दो है, उस तरफ दो है। समझ में आया ना, मतलब ऐसे करके एक हार्ट है, ऐसे करके एक हार्ट है। ठीक है ना, और बीच से ये सब वेसल जा रहा है, ये सब वेसल जा रहा है, जो पेन है वो सब वेसल है, और हार्ट ऐसा टाइप का है। तो हम लोग ने ऐसा डायग्राम बनाया है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को सिर्फ ये वाला हार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंड वेसल्स ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन उस तरफ भी, इस तरफ भी एक हार्ट प्रेजेंट है। दैट मींस इनका ठीक उस तरफ भी एक हार्ट प्रेजेंट होगा। तो ये लोग यहाँ पे हम लोग को एक एक मतलब दो दिखाई दे रहा है, इन दोनों का उस तरफ और दो है, इसलिए इन हार्ट्स का नाम क्या दिया है, ओसोफेजियल हार्ट, 2 पेयर्स। ठीक है, ये 1 पेयर दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका एक एक पेयर उस तरफ है, तो 2 पेयर्स। ठीक है, ये पल्सेटाइल हार्ट है, माने इनके अंदर ब्लड घुसता है, डोर्सल से इनके अंदर ब्लड घुसता है, जैसे ही ब्लड घुसता है ये लोग ब्लड को पंप करके वेंट्रल के थ्रू निकाल देता है, इसलिए इन लोगों को पल्सेटाइल हार्ट बोला गया है। ठीक है, अच्छा, अब और इस तरफ अगर हम लोग मूव करें, यहाँ पे भी इसके जैसा दिखने लायक सेम 2 हार्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है। ये दोनों हार्ट भी ट्यूबुलर पल्सेटाइल हार्ट है, मतलब ये लोग भी ब्लड को पंप करने का एबिलिटी रखता है। ये दोनों भी 2 पेयर है, माने 2 इधर है, 2 उस तरफ है। ठीक है, अच्छा, ये हार्ट जो है और ये हार्ट, दैट मींस लेटरल ओसोफेजियल हार्ट जो है, वो लोग देखो कनेक्टेड है एक ब्लड वेसल के साथ, जिस ब्लड वेसल का नाम क्या है, सब ओसोफेजियल ब्लड वेसल। ठीक है, उसी तरीके का एक ब्लड वेसल नीचे भी है जिसका नाम है सब न्यूरल ब्लड वेसल। ठीक है, सब न्यूरल ब्लड वेसल। ठीक है, अच्छा, ये दोनों जो ब्लड वेसल है, इन दोनों ब्लड वेसल का स्पेसिफिक काम है। क्या काम है, जो सब ओसोफेजियल ब्लड वेसल है उसका काम है ब्लड का डिलीवरी करना कहाँ पे, एलिमेंट्री कैनल पे, और सब न्यूरल वेसल का काम है ब्लड का डेवलपमेंट करना कहाँ पे, नर्वस सिस्टम पे। इस ऑर्गेनिज्म का जो नर्वस सिस्टम है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम है सब न्यूरल का, इसलिए सब न्यूरल।
एंड एलिमेंट्री कैनल, गट का जो पोर्शन, एलिमेंट्री कैनल का जो अलग अलग ऑर्गन है, सेल्स है, उनको खाना पहुंचाने का या उन तक ब्लड लेके जाने का काम किसका है? सब ओसोफेजियल वेसल का है। ठीक है, ये दोनों वेसल देखो दो इस तरीके का स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को हम लोग, ठीक है, बिकॉज ये हार्ट के लाइन में है, ये स्ट्रक्चर हार्ट नहीं है, ये लोग हार्ट के जैसा पंप नहीं करता है, ये लोग बस एक कनेक्टिव ट्रैक्ट है जो सब ओसोफेजियल को सब न्यूरल के साथ कनेक्ट करता है। लेकिन बिकॉज ये हार्ट के एक ही पैटर्न में, एक ही लाइन में आ जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग नॉन पल्सेटाइल हार्ट कंसीडर करते हैं। दैट मींस ये हार्ट पंप नहीं करता है। नॉन पल्सेटाइल माने नॉट पंपिंग हार्ट। वन पेयर हम लोग को दिखाई दे रहा है उस तरफ और कुछ नहीं है। ठीक है, एंटेरियर लूप्स इनको हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या देखो, क्योंकि इससे ये जब पंप करेगा इसका ब्लड इधर से भी निकलेगा और एक नीचे से भी निकलेगा, तो इसका ब्लड जब यहाँ आएगा, दैट मींस यहाँ आएगा, यहाँ से इसमें आने का तो कोई सोर्स होना पड़ेगा। वो सोर्स क्या है? सब ओसोफेजियल में जब ब्लड आएगा तो सब ओसोफेजियल से सब न्यूरल में ये एंटेरियर लूप के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस सर्कुलेटरी मैकेनिज्म को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो रेड में मैंने 3 ब्लड वेसल बनाया है, इनका नाम मैंने दिया कॉमिसरल वेसल्स। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम कॉमिसरल वेसल्स। ठीक है, मान लेते हैं कि कॉमिसरल ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड आके निकल रहा है किधर? इस ब्लड वेसल में, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? डोर्सल ब्लड वेसल, है ना। तो इन कॉमिसरल ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड आके निकल रहा है डोर्सल ब्लड वेसल में। अब अगर दिमाग में आ रहा है सर कॉमिसरल वेसल में ब्लड कहाँ से आएगा, तो ये एक साइकिल है। हम लोग लास्ट में आके पहुंच जाएंगे कि कॉमिसरल ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड कैसे निकल रहा है। लेकिन अभी कंसीडर करते हैं कि कॉमिसरल ब्लड वेसल के थ्रू जो ब्लड निकल रहा है वो ब्लड कहाँ निकल रहा है? डोर्सल ब्लड वेसल में निकल रहा है। ठीक है, वो जो ब्लड निकल रहा है वो ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, DO2 ब्लड है। ठीक है, दैट मींस इस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है एंड CO2 का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है ना, ऐसा ब्लड इन कॉमिसरल ब्लड वेसल के थ्रू आके यहाँ पे निकल रहा है। तो ये ब्लड जैसे इधर आएगा, ऊपर का जो स्किन है वो भी मॉइस्ट है, तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या होगा? गैसियस डिफ्यूजन। तो ये जो हमारा आउटर एटमॉस्फेयर है, ये जो आउटर एटमॉस्फेयर है, उस आउटर एटमॉस्फेयर से हम लोग देखेंगे अंदर आ रहा है क्या? ऑक्सीजन, और अंदर से बाहर निकल के जा रहा है क्या? CO2। ठीक है ना, तो जैसे ही एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन आएगा और CO2 निकल जाएगा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज हो जाएगा इनटू व्हाट ब्लड? इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया, CO2 निकल के चला गया। ठीक है ना, आउटर एटमॉस्फेयर के साथ ये एक्सचेंज हुआ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, है ना, उसके वजह से ये एक्सचेंज हुआ। लेकिन कॉमिसरल ब्लड वेसल के थ्रू निकला था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे इधर आया एक्सचेंज हुआ, ब्लड क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से इधर से इधर से इधर से घुसेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना, ये ऑक्सीजनेटेड कॉमिसरल से निकला, एक्सचेंज किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके इन रेस्पेक्टिव हार्ट्स में घुस रहा है। जैसे ही एक बार ब्लड इन रेस्पेक्टिव हार्ट के अंदर आ जाएगा, O2 ब्लड जैसे ही आ जाएगा, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे अंदर आ गया, आने के बाद ऊपर में एक वेल्व होता है। इन सब हार्ट के एकदम ऊपर में एक वेल्व है, इस तरीके का एक वेल्व प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, ये वेल्व हो जाएगा बंद। ठीक है, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये एक वेल्व है। ठीक है, ये वेल्व है। ठीक है, तो ये वेल्व जैसे ब्लड अंदर फिलिंग हो गया, भर्ती हो गया, तो ये वेल्व बंद हो जाता है। ठीक है, एंड नीचे भी एक वेल्व है इस तरीके का, सब हार्ट के नीचे ऊपर एक वेल्व है, नीचे एक वेल्व। ठीक है, तो ऊपर का जो वेल्व है, ऊपर का वेल्व को लिखने का ही जगह नहीं, जो अपर वेल्व है, यूपी वेल्व लिख देता हूं। जो अपर वेल्व है उसका नाम है ओरिकुलर वेल्व। ठीक है, और जो लोअर वेल्व है, जो नीचे हम लोग को दिखाई दे रहा है लोअर वेल्व, उसका नाम है वेंट्रिकुलर वेल्व। ठीक है, तो ये ऊपर का जो वेल्व है उसका नाम है ओरिकुलर वेल्व, और ये जो नीचे का वेल्व है उसका नाम है वेंट्रिकुलर वेल्व। ठीक है, तो एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे हार्ट के अंदर घुसेगा, तब ये वाला वेल्व खुल गया था इसलिए ब्लड घुसा, लेकिन ये सब चारों वेल्व बंद है ना। एक बार हार्ट भर्ती हो गया, उसके बाद क्या होगा? ऊपर वाला वेल्व बंद हो जाएगा, नीचे वाला वेल्व खुल जाएगा, और तभी हार्ट पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये सब पल्सेटाइल हार्ट है, ये सब पल्सेटाइल हार्ट पंप करेगा। तो जैसे ही पंप करेगा, इन दोनों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? कंप्लीटली निकल के कहाँ आ जाएगा? वेंट्रल ब्लड वेसल में। ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा? इसका एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट इधर से घुसेगा,
ठीक है ना, ये जो जगह है इस जगह से घुसेगा एंड एक ऑक्सीजनेटेड अमाउंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, लेकिन इसका भी एक अमाउंट क्या होगा, यहाँ से घुसेगा। समझ में आया? ठीक है, तो जैसे ही ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हुआ, ब्लड अंदर आया, तब ऊपर वाला वेल्व दैट इज ऑरिकुलर वेल्व खुल गया, तब ब्लड अंदर आ गया। ये वेंट्रिकुलर वेल्व अब तब भी बंद था। जैसे ही ब्लड अंदर आके पूरा ब्लड भर्ती हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला बंद है, पूरा भर्ती हो गया, तब ये वाला वेल्व बंद हो गया, ये वाला खुल गया, और तभी हार्ट ने पंप किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दोनों का निकल के आया, क्योंकि इनका कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ, लेकिन इन दोनों का तो कनेक्शन है इसके साथ। तो ये वेल्व बंद होके जब ये खुलता है और ये पंप करता है, इसका एक अमाउंट ऑफ ब्लड निकल के इधर आ जाएगा, दैट इज सब ओसोफेजियल वेसल में, एंड एक अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रल में निकल जाएगा। ठीक है, अब जो इसमें ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसमें आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, इन एंटेरियर लूप के थ्रू किधर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देगा किसमें, एलिमेंट्री कैनल में, माने ऑक्सीजन देगा ये ब्लड जाके और CO2 लेगा। ठीक है, तो ऐसे करने के बाद इससे ये कौन सा ब्लड वेसल है, सबओसोफेजियल ब्लड वेसल, इससे जो ब्लड इधर जाएगा वो ब्लड ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने एलिमेंट्री कैनल के सेल को ऑक्सीजन दे दिया, उससे CO2 लिया, तो ये एक्सचेंज करके ऑक्सीजन दिया, CO2 लिया, ये करके ये ब्लड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड से ये ब्लड यहाँ पहुंचने तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, और बन के देखो इस कोमिसरल ब्लड वेसल के थ्रू यहाँ आ रहा है। तो देखो कनेक्ट हो गया कि कैसे कोमिसरल ब्लड वेसल के थ्रू यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था, सिमिलरली सब न्यूरल का भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। तो यहाँ के थ्रू जब यहाँ पहुंचेगा तो क्या पहुंचेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा। वेंट्रल ब्लड वेसल क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड इन द बॉडी, मैक्सिमम बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन को देना, CO2 को लेना, ये काम किसका है, वेंट्रल का है। तो वेंट्रल में जब यहाँ से ब्लड निकलेगा ऑक्सीजनेटेड 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 ऑक्सीजनेटेड, लेकिन जब वो क्या करेगा, बॉडी के थ्रू पूरा पास होगा, यहाँ तो बस 13 सेगमेंट है, 120 सेगमेंट तक जब ये पास होगा तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, CO2 ले रहा है करके, फिर इसके थ्रू जो ब्लड यहाँ पहुंचेगा, फिर क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच के आउटर एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज करेगा, क्योंकि डॉर्सल स्किन मॉइस्ट है, वेंट्रल नहीं है, इसलिए वेंट्रल में नहीं कर सकता एक्सचेंज, डॉर्सल में ही कर सकता है, करेगा। फिर ऑक्सीजनेटेड बना, फिर इसमें, फिर ऊपर का वेल्व बंद, नीचे का खुला, फिर ये पंप करेगा, इसका निकलेगा, इसका आधा निकलेगा, आधा ऐसे आएगा, फिर ऐसे करके कोमिसरल के थ्रू वापस वहां पे एक्सचेंज फिर कर। यही है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, स्किन के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को हम लोगों ने समझा। ठीक है, एज वेल एज इनके बॉडी में ट्यूबुलर हार्ट कैसे काम करता है और सर्कुलेटरी प्रोसेस कैसे चलता है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो आई हैव फ्यूज्ड the circulatory system with the respiratory system and we discussed it together. I hope you understood it. Moving on to the other characters. आराम से इसका नोट बनाना लेकिन तुम लोग। So ये है हमारा नेक्स्ट डिस्कशन, और इस डिस्कशन में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन अ सेल व्हिच इज कॉल्ड एज नेफ्रिडिया, एंड नेफ्रिडिया इसका कैरेक्टरिस्टिक सेल है। ठीक है, सो नेफ्रिडिया इज द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ दिस फाइलम। ठीक है, क्यों ये कैरेक्टरिस्टिक सेल है इस फाइलम का, क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करता है। क्या क्या एक्टिविटी करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, एज वेल एज एक्सक्रीशन, दैट इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एंड एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन क्या है हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ये जो नेफ्रिडिया है जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक सेल बोल रहे हैं, ये इसका दो हिस्सा है। एक है ये टोम टाइप का हिस्सा जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, नेफ्रोटोम, एंड दूसरा है ये ट्यूब का जैसा हिस्सा जो यहाँ पे मैंने मोटा मोटी सीधा बनाया है, लेकिन ये हाईली कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग ट्यूबुलर पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके काट दूं, इस जगह का ये जो नीचे का है वो नेफ्रोटोम, और ये ऊपर का जो हिस्सा है वो है ट्यूबुलर पार्ट, जिसका कॉइलिंग बहुत ज्यादा है, मैंने यहाँ पे नहीं किया है। ट्यूबुलर पार्ट के अंदर एक सेल प्रेजेंट रहता है जो मैंने एक साइड में ड्रॉ किया है, जनरली पूरा ट्यूब में होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेल है, इसको हम लोग ब्राश बॉर्डर ट्यूबोइडल सेल बुलाते हैं, जो है एक एब्जॉर्प्टिव सेल जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इस सेल का काम करने का मैकेनिज्म को समझे तो क्या समझेंगे, मान लो फिर से हम लोग यहाँ पे एक आर्थोम ड्रॉ कर रहे हैं, मान लेते हैं। ठीक है, सपोज ये एक आर्थोम है। ठीक है, अच्छा, आर्थोम का जो सिलोम है, देखो कहाँ से कहाँ का कनेक्शन है। आर्थोम का जो सिलोम है वो कैसा सिलोम है, ट्रू सिलोम है। एनिलिडा का ट्रू सिलोम है, लेकिन सीजो सिलोम है। दैट मीन्स द सिलोम इज प्रेजेंट इनसाइड मेसोडर्म इन द स्प्लिट ऑफ मेसोडर्म, बट वो सिलोम अभी भी पाउचेस फॉर्म में प्रेजेंट है, सारा पाउचेस एक साथ फ्यूज नहीं हुआ है। तो इसके बॉडी में हम लोग को क्या मिलेगा, इस तरीके का
इस तरीके का बड़ा बड़ा हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके का बड़ा बड़ा इसके बॉडी के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा सीलोमिक पाउचेस। सो सीलोमिक पाउचेस प्रेजेंट है, लेकिन मेसोडर्म के अंदर है, मेसोडर्म के स्प्लिट में है। ठीक है, करंट चला गया है, थोड़ा रुको। ठीक है, तो सीलोमिक पाउचेस प्रेजेंट है, मेसोडर्म के अंदर है सीजोसीलोम। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, ये जो सेल प्रेजेंट है ना, ये सेल क्या करता है। देखो मैकेनिज्म ऐसा है कि ये सीलोमिक पाउचेस के अंदर होता है क्या, सीलोमिक फ्लूइड। ये हम लोगों ने पिछले फाइलम में पढ़ा है। तो इसके आसपास का इस सीलोम के आसपास का जितना भी सेल है, वो सारा सेल क्या करेगा, वो सारा सेल अपना जो मेटाबॉलिक वेस्ट है एमोनिया, उसको डंप करेगा किधर, उसको डंप करेगा सीलोमिक फ्लूइड में ऑफ द नियर बाई सीलोमिक पाउचेस। इस सेल का जो सबसे नियर बाई सीलोमिक पाउचेस है, उसका सीलोमिक फ्लूइड में ये अपना मेटाबॉलिक वेस्ट डाल देगा। इस सीलोमिक फ्लूइड से उस मेटाबॉलिक वेस्ट को उठाएगा कौन। देखो मैकेनिज्म ऐसा है, इस सीलोमिक फ्लूइड से जो मेटाबॉलिक वेस्ट इसने दिया है एमोनिया, जिसके चारों तरफ पानी है, उस एमोनिया को उठाएगा कौन, ये स्ट्रक्चर। ये कौन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। कौन उठा रहा है, नेफ्रोटोम उठा रहा है। इसलिए नेफ्रोटोम में क्या प्रेजेंट है, एब्जॉर्प्टिव ग्रेन्यूल, क्योंकि ये क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम दी सी फ्लूइड। सीलोमिक फ्लूइड से ये उठाएगा। ठीक है, उठा के अपने अंदर छोड़ देगा, यहां रिलीज कर देगा। वो एमोनिया जब यहां से पास होगा, ठीक है, तो उस एमोनिया के चारों तरफ बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल ऐसे प्रेजेंट है, मेनी वाटर मॉलिक्यूल ऐसे प्रेजेंट है। तो जैसे ये एमोनिया इधर से पास होगा, ये सेल क्या करेगा, एब्जॉर्प्टिव सेल पानी को एब्जॉर्ब करके बॉडी में वापस डाल देगा और यहां से निकाल देगा एमोनिया को डायरेक्ट। ये है वो पोर जिसके थ्रू फाइनली एमोनिया निकलेगा। इस पोर का नाम क्या है, नेफ्रिडियोपोर। एंड नेफ्रिडियोपोर कहां खुल रहा है, नेफ्रिडियोपोर खुल रहा है अर्थवर्म के स्किन में। तो नेफ्रिडियोपोर्स आर लोकेटेड इन द अर्थवर्म स्किन के थ्रू एमोनिया को बाहर और वाटर वापस एब्जॉर्ब। तो एमोनिया बाहर माने एक्सक्रीशन, वाटर एब्जॉर्ब माने ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनिंग द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। समझ में आया कि नहीं। इसलिए हम लोग अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, क्योंकि अर्थवर्म अपने बॉडी से जो एमोनिया है वो किसके थ्रू निकालता है, अपने स्किन के थ्रू। तो जहां जहां से क्या होगा, अर्थवर्म पास होगा, उसका स्किन के थ्रू वो क्या कर रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट निकाल रहा है, सॉइल में छोड़ रहा है, और उसी सॉइल के थ्रू वो पेनेट्रेट करता है, बरोविंग करता है एनिमल। अर्थवर्म डज बरोविंग, बरोस बनाता है। तो जिस सॉइल के थ्रू जा रहा है अपने स्किन के थ्रू, उसमें एमोनिया छोड़ रहा है। तो एमोनिया छोड़ने की वजह से जो सॉइल है, उस सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। नाइट्रोजन कंटेंट जिस सॉइल में ज्यादा है, उस सॉइल में प्लांट्स बहुत स्पीड से ग्रो करता है। दैट इज वाई अर्थवर्म्स आर कॉल्ड एज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। और देखो कहां से कहां का रिलेशन है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया है कि कैसे ये लोग एक्सक्रीशन करता है। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल के ही मैंने पढ़ा दिया इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सेल नेफ्रिडिया। ठीक है, आई होप कनेक्शन बना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। सो ये है नेक्स्ट टू कैरेक्टर्स। ठीक है, ये जो नेक्स्ट टू कैरेक्टर्स है, इसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई एसेक्सुअल नहीं दिखेगा। डायोसियस है नेरिस, मेल फीमेल अलग अलग। ठीक है, तो मेल फीमेल अलग अलग है। डेवलपमेंट इन लोगों का इनडायरेक्ट है, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एक लार्वा का होना मस्ट है, दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा। तो अंडा से होगा ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा से होगा एडल्ट। जबकि लीच एंड अर्थवर्म दे आर हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो ये लोग में हम लोग को डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, एंड हर्माफ्रोडाइट। सो एक ही बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट रहेगा। और डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जो अंडा है, अंडा से जो यंग वन बाहर आएगा, दैट विल लुक एग्जैक्टली लाइक एन एडल्ट, बट साइज में छोटा होगा। ठीक है, सो ये अच्छे से तुम लोग को ये वाला पोर्शन याद रखना है, क्योंकि काफी एक्सेप्शन है एज पर द नाम, इसका अलग उसका अलग। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोग को मिलेगा इस तरीके का दो पेयर्ड गेंगलिया है, जो लेटरल नर्व्स के थ्रू वाया लेटरल नर्व दिस गेंगलिया आर कनेक्टेड विद टू नर्व कॉर्ड। लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड है ये, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में बॉडी का रन करेगा। उससे साइड में निकल रहा है ट्रांसवर्स नर्व्स, या फिर इसको हम लोग सेगमेंटल नर्व्स भी बुला सकते हैं। ये निकलता है, साइड में जाता है। ठीक है, एंड ऊपर में भी गेंगलिया से कुछ कुछ नर्व्स आगे की तरफ जा रहा है, जिसका नाम है कोमिशरल प्री गेंगलियनिक नर्व। और ये जो कोमिशरल प्री गेंगलियनिक नर्व है, ये सब करता है कंट्रोल्स दी माउथ पार्ट्स। ठीक है, कंट्रोल्स दी माउथ पार्ट्स एक्सेट्रा, मतलब बॉडी का इंटीरियर पार्ट का जो भी पार्ट्स है, उन पार्ट्स को कंट्रोल करता है ये बाकी गेंगलिया। तो इस तरीके का है इनका नर्वस सिस्टम। नर्व कॉर्ड दिखने में
अच्छा, डायग्राम ये सब कर लेना। एंड लीच को हम लोगों ने स्टार्टिंग में हिरुडिनारिया बुलाया था। तो क्यों बुलाया था? क्योंकि लीच का जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें प्रेजेंट होता है एक एंटीकोआगुलेंट जिसका नाम है हिरुडिन, ठीक है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट एंटीकोआगुलेंट, लीच जब हमारा ब्लड को सक करेगा तो हमारा जो ब्लड हमारे बॉडी से निकलते ही क्लॉट कर जाएगा। तो लीच ने अपने सलाइवा में क्या किया है, बिकॉज हमारा ब्लड उसका फूड है, उसको तो हमारा ब्लड चाहिए, तो उसने इस सिस्टम का एक एडेप्टेशन बनाया कि जब मैं ह्यूमन का ब्लड को सक करूंगा, ह्यूमन ब्लड का नेचर है कि वो जब ह्यूमन के बॉडी से बाहर आएगा तो वो क्लॉट कर जाएगा, कोआगुलेट कर जाएगा। लेकिन मुझे तो ये ब्लड अपने पेट तक पहुंचाना है। अगर मैं इसको सक करूं और मेरे मुंह में ही ये ब्लड कोआगुलेट हो जाए तो मेरा मुंह भी ब्लॉक हो जाएगा और मेरा पेट तक ये खाना मैं कैसे पहुंचाऊंगा। तो इसलिए लीच ने क्या किया, अपने सलाइवा, मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें सलाइवा जो प्रोड्यूस करता है उसमें एक एंटीकोआगुलेंट बना लिया जिसका नाम है हिरुडिन। तो वो जब हमारा ब्लड को सक करता है तो हमारा ब्लड जैसे ही बाहर आता है, क्लॉट करना शुरू करेगा, तभी हिरुडिन आके क्या करेगा, उस क्लॉटिंग को होने नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा। तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो उस ब्लड को क्या करेगा, पूरा एलिमेंट्री कैनल में आराम से भेज सकता है। लेकिन अगर मुंह में क्लॉट हो जाए, सॉलिड टाइप का बन जाए, तो खाएगा कैसे, स्टोमक तक पहुंचाएगा कैसे? समझ में आया? इसलिए उन्होंने अपने सलाइवरी ग्लैंड में एक एंटीकोआगुलेंट डेवलप किया है जो हमारे ब्लड के कोआगुलेशन को, क्लॉटिंग को रोकता है, सो दैट ब्लड आराम से उसके डीपर एब्डोमेन तक क्या हो जाए, फ्लो होते रहे, ज्यादा खाना वो स्टॉक कर पाए। दैट इज वाई लीच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिरुडिनारिया, बिकॉज उसके सलाइवरी ग्लैंड में हिरुडिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग एनिलिडा का डिस्कशन खत्म करते हैं। सारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एसेंशियल कैरेक्टर समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम विद आर्थ्रोपोडा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।